Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. मह्यं ददाति स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का टॉपिक है थर्ड कैंटो 15th चैप्टर 46th वर्स, जहाँ टॉपिक वो हो रहा है जहाँ भगवान का गुणगान गाया जा रहा है। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। कुमाराउचुः यो अन्तर्हितोर्दिगतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्वैव नो नयनमूलम् अनन्तराधः यर्हेव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितः रः भवत् उद्भवेन। वर्ड टू वर्ड पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड। कुमार उचुहु, कुमार सेड, यह ही हो, अंतर्हितः not manifested, हृदि in the heart, गतः is seated, api even though, duratmanam to the rascals, tvam you, sah he, adyah today, eva certainly, nah of us, nah sah he adyah today, eva certainly, nah of us, nayana moolam face to face, ananta o unlimited one, radha attained, yadhi when, eva certainly, karna vivarena through the ears, guham intelligence, gataha have attained, naha our pitra by our father, anuvarnitaha described, raha mysteries, bhavat udbhavena by your appearance. The Kumara said, बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। The Kumara said, our dear Lord, you are not manifested to the rascals, even though you are seated within the heart of everyone. But as far as we are concerned, we see you face to face, although you are unlimited. The statements we have heard about you from our father Brahma through the years have now been actually realized by your kind appearance. So, purport by Srila Prabhupada. The so-called yogis who concentrate their mind or meditate upon the impersonal or void are described here. This verse of Srimad Bhagavatam describes persons who are expected to be very expert yogis, engaged in meditation, but who do not find that the Supreme Personality of God is seated within the heart. These persons are described here as Duratma, which means a person who has a very crooked heart, or a less intelligent person, just opposite to a Mahatma, which means one who has a broad heart. Those so-called yogis who although engaged in meditation are not broad-hearted, cannot find the four-handed Narayana form, even though he is seated within the heart.
Although the first realization of the Supreme Personality of Godhead is impersonal Brahman, one should not remain satisfied with experiencing the impersonal effulgence of the Supreme Lord. In the Ishopanishad also, the devotee prays that the glaring effulgence of Brahman may be removed from his eyes so that he can see the real personal feature of the Lord and thus satisfy himself fully. Similarly, although the Lord is not visible in the beginning because of his glaring bodily effulgence, if a devotee sincerely wants to see him, the Lord is revealed to him. It is said in Bhagavad Gita that the Lord cannot be seen by our imperfect senses, imperfect eyes, he cannot be heard by our imperfect ears, and he cannot be experienced by our imperfect senses. But if one engages in devotional service with faith and devotion, then Lord reveals himself. Here the four sages Sanat Kumar, Sanatan, Sanandan and Sanat are described as actually sincere devotees. Although they had heard about their father, they had heard from their father, Brahma, about the personal feature of the Lord, only impersonal feature, Brahman, was revealed to them. But because they were sincerely searching for the Lord, they finally saw his personal feature directly, which corresponded with the description given by their father. They thus became fully satisfied. Here they express their gratitude because although they were foolish impersonalists in the beginning, by the grace of the Lord, they could now have the good fortune to see his personal feature. Another significant aspect of this verse is that the sages describe their experience of hearing from their father, Brahma, who was born from the Lord directly. In other words, the disciplic succession from the Lord to Brahma and from Brahma to Narada, Narada to Vyasa, and so on is accepted here. Because the Kumaras were sons of Brahma, they had the opportunity to learn Vedic knowledge from the disciplic succession of Brahma, and therefore, in spite of their impersonalist beginnings, they became in the end direct seers of the personal feature of the Lord. तो इस श्लोक के मुख्य मुख्य पॉइंट्स को यहाँ श्रील प्रभुपाद ने प्रोजेक्ट किया है। बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद ने हर एक एस्पेक्ट को यहाँ प्रोजेक्ट किया है। वैसे इतने दिन आपने चर्चा किया होगा कि किस प्रकार से दीति बहुत सारे असुरों को जन्म देने वाली है, इसीलिए सब जगह एक अंधकार छाया हुआ है। तो सब देवी देवताएं जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी इस कथा को बता रहे हैं। तो मैत्र ऋषि का भी यहाँ मैत्र विदुर संवाद हो रहा है। तो मैत्र ऋषि बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी आश्वासन दे रहे हैं देवी देवताओं को, और फिर बताते हैं कि किस प्रकार, यहाँ बहुत सारे संवाद है। देखिए, मैत्र विदुर संवाद, मैत्र ऋषि बता रहे हैं क्या हुआ था जब दीति के गर्भ में असुरों का जन्म, असुर हैं दीति के गर्भ में, असुरों का जन्म होने वाला है, सब जगह अंधकार हो गया है। तब देवी देवताएं जाते हैं ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा जी का संवाद क्या होता है इनके साथ, देवी देवताओं के साथ, वो बता रहे हैं। तब ब्रह्मा जी वैकुंठ का पूरा वर्णन कर रहे हैं कि वैकुंठ में भगवान किस प्रकार से सेवा ग्रहण करते हैं अपने भक्तों के द्वारा, भगवान की सुंदरता, और बहुत सुंदर सेवा सब भक्त करते हैं। वहां जय विजय का भी उल्लेख कर रहे हैं, और 4 कुमार किस प्रकार से वैकुंठ गए उसके बारे में भी उन्होंने कहा। तो जब 4 कुमार दिखने में तो छोटे बालक हैं, लेकिन उनके पिताजी के शाप के कारण वो एक बालक का रूप ले लिए हैं, निर्वस्त्र हैं, लेकिन बड़े विद्वान हैं। तो ब्रह्मा जी ने वैसे उन्हें भगवान के विषय में कहा हुआ है। भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो सब जगह घूम सकते हैं। 4 कुमारों को वो एक आशीर्वाद है कि वो भौतिक जगत में भी जैसे नारद जी हैं, जैसे वहां भ्रमण कर सकते हैं, उसी प्रकार से वो आध्यात्मिक जगत में भी भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन वो प्राय आध्यात्मिक जगत में ही भ्रमण करना चाहते हैं, इस भौतिक जगत में उन्हें ज्यादा कुछ रुचि नहीं है। तो बहुत आध्यात्मिक जगत में भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक में जब पहुंचे, तब उन्होंने 7 द्वार देखा, तो 6 द्वार को पार कर चुके। 7वें द्वार अभी नादान बच्चे के रूप में है, तो 7वें द्वार को उन्होंने खोलने का प्रयास किया। तब यहाँ दीति
वहाँ ये जो दो द्वारपाल हैं, जय और विजय, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे तुम घुस जाते हो यहाँ अंदर, हाँ अभी समझता नहीं है कि इस प्रकार से नहीं आना चाहिए। तब ये सोच में है कि क्या वैकुंठ में कोई असुर आ सकता है, क्या हम असुर हैं, क्या हम पापी हैं? तो वैसे वैकुंठ में कौन जा सकते हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तक। उस पदम को पहुंचने के लिए अच्छे गुण होंगे तभी तो जा सकते हैं, तो क्वालिफिकेशन है। तो भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है निर्माण मोहा जित संग दोषा। तो जिसके अंदर कोई मान नहीं है, कोई भौतिक मान, द्वंद नहीं है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, उन्होंने जीत लिया है इस दुस्संग को। जित संग दोषा, कुछ दोष है ही नहीं। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्य, हमेशा अध्यात्म, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो वही तो जा सकते हैं। द्वंद्वैर विमुक्तः, जो द्वंद्व से विमुक्त है, तो ये अच्छा है, ये बुरा है, इसे भेजना चाहिए, इसे नहीं भेजना चाहिए, इस प्रकार का द्वंद्व इन दोनों के पास आया कैसे? वो भी वैकुंठ में रहकर। द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुःख संगैर। तो ये द्वंद्व तो जो भौतिक जगत का लक्षण है, कोई आपका मित्र हो सकता है, तो या कोई आपका शत्रु हो सकता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें बस इनसे ही दोस्ती रखनी चाहिए। ये सब द्वंद्व जो है, ये इस भौतिक जगत का लक्षण है। इसलिए भक्तों को कहा है अच्छी तरह से भक्ति करो, ताकि सगुणान समतीतेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। इस गुणों से परे हो जाओ। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, यो हमारे पर्सपेक्टिव बोलते हैं ना, तो हम उसे बुरा बोलते हैं। किसी और के लिए वो अच्छा हो सकता है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे लिए अच्छी हो सकती, तो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन किसी के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन जैसे सोसाइटी में बिल्कुल चोर नहीं होना चाहिए, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल चोर नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, चोर नहीं रहना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन चोर नहीं है तो पुलिस को क्या काम है फिर? तो पुलिस तो चाहता है अच्छी तरह से चोरी होगा तो उसके कुछ काम भी बढ़ेंगे। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर को पूछिए क्या वो चाहता है कोई बीमार नहीं पड़े? तो ये जो द्वंद्व है, अच्छा या बुरा, ये सिचुएशन का जो द्वंद्व है, ये भौतिक जगत का एक लक्षण है। तो यहाँ सोच में है चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार सोच रहे हैं ये दो द्वारपाल जो हैं, ये इन्हें किसने अधिकार दिया कि ये चूज करने के लिए कोई जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जैसे हम मंदिर में महाराज के पास, गुरु महाराज अगर कोई आएंगे, तो गुरु महाराज के पास किसी मिलाना है, किसी नहीं मिलाना है, ये हम चूज करते। लेकिन जो शुद्धात्मा होते हैं वो सबके लिए एक ही बराबर होते हैं। हम बोलेंगे नहीं, हमको क्वालिटी नहीं, आपको क्वालिटी नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। लेकिन जो शुद्धात्मा होते हैं वो सबके अंदर भगवान को देखते हैं, वो सबके अंदर परमात्मा को देखते हैं। इसीलिए उन्हें उत्तम अधिकारी भक्त कहते हैं। वो कभी इस प्रकार से पार्शियलिटी नहीं करते हैं, इन्हें चूज करना चाहिए, इन्हें नहीं चूज करना चाहिए। कृष्ण स्वयं कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूँ। ये तो हमारे अंदर वो द्वंद्व है। हम हमारे नजर से किसी को परखते हैं, ये हमारे अंदर का दोष है। तो चार कुमार वही देख रहे हैं कि ये इनके अंदर ये दोष कैसे आया। और फिर भगवान को खोजते खोजते वो वैकुंठ पहुंचे, जहां सुने थे ब्रह्मा जी से, अपने पिताजी से सुने भगवान के विषय में। तो कहते हैं जब हम सुनते हैं तो फिर भी हम भगवान को ज्यादा समझ नहीं सकते। सुन तो लेते हैं, लेकिन भगवान को देखने की तीव्र इच्छा होती है। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या दिया है? सुंदर विग्रह दिया है, जब पूरा लक्षण दिए कि क्या वर्णन किया है, सेम वो लक्षण। तुम्हारा प्रतिमा नहीं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए भगवान को ज्यादा कठिन नहीं है समझना। जो भगवान के अर्चा विग्रह का सेवन करता है वो वैसे नित्य भगवान को वहां
देख भी सकता है। अगर अच्छी तरह से भगवान का सेवा करता है तो भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं। अब इनके अंदर तीव्र इच्छा जागृत हुई कि हमें देखना है। इतना सुंदर वर्णन किया है भगवान के बारे में हमारे पिताजी ने कि भगवान का वैकुंठ कैसा है। भगवान के वैकुंठ को भी देखने की बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा हो रही है, और वहां के वैकुंठ वासियों को भी देखने की इच्छा हो रही है, लेकिन भगवान को पहले देखने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ ईशोपनिषद का एक श्लोक आता है, पूषण एक कर्ष व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तते तेज ते पश्यामि उसावसो पुरुष सोहमस्मि। ये हटाइए आपका जो तेज जो है हटा दीजिए भगवान। ये ब्रह्मन कहते हैं, भगवान का जो तेज है उसे ब्रह्मन कहते हैं। तो इस ब्रह्मन एफल्जेंस को भगवान आप हटाइए, हमें नहीं देखना इस ब्रह्मन एफल्जेंस को। तो ब्रह्मन एफल्जेंस है ना, तो तेज कांति, जो कांति शरीर से निकल रहा है उसे भक्त नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो कांति में भगवान छुप जाते हैं उस कांति के अंदर, बीच अंदर, क्योंकि उनके शरीर से वो कांति निकल। तो इस प्रकार से ये कांति को हटाने की प्रार्थना करते हैं। ईशोपनिषद में इसका श्लोक है। फिर कहते हैं हमें आपका तेजस्वी जो सुंदर स्वरूप है वो देखना है, तेज नहीं देखना, तेजस्वी स्वरूप को देखना है। जब तेजस्वी स्वरूप को देखे चार कुमार, अंतर्हितः हृदि गतः, अंतर्हितः हृदि गतः, आप हृदय गतः, आप सबके हृदय में बैठे हैं, फिर भी आप सबको व्यक्त क्यों नहीं है। तो वहां कुंती महारानी का एक श्लोक आता है जहाँ कहते हैं माया जवनिकाचन्नम अज्ञादोक्षजम अव्ययम, अज्ञादोक्षजम, भगवान तो अधोक्षजा, ये नयनों से भी परे है भगवान, ये इंद्रियों से भी परे है भगवान, लेकिन भगवान सबको दिखते नहीं है, क्योंकि माया जवनिकाचन्नम, जवनिकाचन्नम का अर्थ है एक प्रकार का पर्दा लगा देते हैं भगवान। कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि आपको सब में रुचि है, भगवान के अलावा सब में रुचि है, भौतिक चीजों में बहुत रुचि है। इसलिए भगवान उन्हीं को व्यक्त होते हैं जो सिर्फ भगवान के विषय में ही हमेशा स्मरण करते हैं। भगवान को कैसे सेवा करें, भगवान को किस प्रकार से सुंदर खिलाएं, भगवान को किस प्रकार से सुंदर उन्हें सजाएं, भगवान का किस प्रकार से नामस्मरण करें। हमेशा भगवान का ही चिंतन जो करता है, सवै मन कृष्ण पदार विंदयो हो पाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने, तो भगवान स्वयं व्यक्त हो जाते हैं। भगवान को देखने के लिए ये भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को देखने के लिए वास्तव में आध्यात्मिक आंखों की आवश्यकता है। जो भगवान बड़े बड़े भक्तों को भगवान ने प्रदान किया, जैसे सूरदास जी हैं, उन्हें भगवान ने प्रकट किया। एक बरसाना में एक महाराज हैं, उन्हें अंधा बाबा कहते हैं। उन्हें इतना सुंदर भगवान का तस्वीर बनाया जो आंखें होकर के बड़े बड़े आर्टिस्ट बना नहीं सकते, इतनी इंट्रिकेसी उसमें है। हमने कहा था भक्तों को हम आपको एक आश्रम में लेके जा रहे हैं, और जाने के बाद आप एक सुंदर तस्वीर देखेंगे, या तस्वीर देखने के लिए बड़ा लाइन भी रहेगा, लेकिन भूल से भी आप ऐसा नहीं कहना कि अंधा बाबा का तस्वीर बताइए, जिन्होंने उन्हें बनाया अंधा बाबा का जो बनाया हुआ तस्वीर बताइए, वो नहीं बोलना, अंधा बाबा ये शब्द यूज नहीं करना, ठीक है। हमने वार्निंग दिया था भक्तों को। तो बहुत देर बड़ा लाइन था, देखने के लिए बड़ा लाइन रहता है। छोटा सा एक उनका मंदिर, बहुत छोटा मंदिर है। बरसाना में आप जब चढ़ेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तो मोर कुटीर के बगल में। तो चढ़े, भक्त लोग वहां बैठ के कीर्तन कर रहे थे, लाइन था, लंबा था, तो हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति, जब वहां से एक पुजारी आए, वो अंधा बाबा का तस्वीर कब देखने को मिलेगा, बनाया हुआ तस्वीर। तो उसे आया गुस्सा। हमने पहले ही वार्निंग दिया था, ये भक्त ने क्या मालूम सुना कि नहीं सुना। तो उसने कहा अंधा तेरा बाप, पहले यहाँ से चालू किया, अंधा तेरे इस्कॉन। अरे हमें भी अनवांटेड, हम सबको गाली मिल गया उनके कारण। तो फिर जब सब लाइन में खड़े रहे और जो तस्वीर जो उन्होंने बनाया वो देखा, आश्चर्यचकित हो गए। ये तस्वीर तो आंख होते हुए भी बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं बना सकते, आम आदमी तो छोड़ो, बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं बना सकते।
तो भगवान को देखने के लिए आध्यात्मिक आंख की बहुत आवश्यकता है। बिल्व मंगल ठाकुर, उन्होंने अपने हाथों से दोनों आंखों को निकाला और फिर भगवान का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आप सोचिए, कृष्ण करनामृत में भगवान का सुंदर वर्णन, वो भी कहाँ का वर्णन? गोपियों का वर्णन, गोलोक का वर्णन, भगवान के रासस्थली का वर्णन। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते तेषां सततयुक्तानां, भगवान से हमेशा युक्त रहो। भगवान को किस प्रकार से अच्छा सेवा कर सकते हैं, बस उसी के बारे में स्मरण करना है। सेवा का मौका आ जाता है, कभी छोड़ना नहीं। भगवान और भगवान के भक्तों का सेवा बहुत दुर्लभ है, और मिल जाता है आउट ऑफ वे जाकर भी सेवा करना चाहिए। आउट ऑफ वे जाकर, आज इसी बात का चर्चा कर रही थी मैं मेरे पुत्र से सुबह मॉर्निंग। आई वाज टॉकिंग टू माय सन। आउट ऑफ वे जाकर हमें सेवा करना है। उस समय हमारे शरीर में हमारी शारीरिक तकलीफ को कभी भी सोचना नहीं। शरीर तो क्या है, रोग से भरा हुआ शरीर रहता है। शरीर में हमेशा रोग रहता ही। ये भौतिक जगत में भी रोग है, अशाश्वतम दुःखालयम है। तो भगवान इतना जल्दी प्रकट नहीं होते हैं। भगवान भक्तों को बहुत ज्यादा टेस्ट कराते हैं। ये नहीं कि हम भक्ति या सेवा उसी समय करेंगे जब हमें सब फैसिलिटीज होगा तब। आउट ऑफ वे जाकर भी हमें सेवा करना है। शुद्ध भक्तों ने वही किया। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? कौन से फैसिलिटीज मिले उन्हें? हम कहते हैं कि हमको फैसिलिटीज होगा तो हम सेवा करेंगे। प्रभुपाद को कौन से फैसिलिटीज थे? क्या था उनके पास? क्या कुछ बनाने के लिए साधन थे? बुक बेचते थे, फिर हम कुछ पैसा इकट्ठा होता था, फिर उस लक्ष्मी से भगवान को भोग लगाते थे और भक्तों को खिलाते थे। इस्कॉन ऐसे ही नहीं बना। आज हमें सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिला तो बड़बड़ करते हैं, मिलता है तो सोचते हैं कि वी हैव द राइट्स टू गेट, अपना अधिकार जमाते, वेस्ट भी करते हैं। तो प्रभुपाद ने आउट ऑफ वे, ये तो हमारा, क्योंकि बहुत पहले का एग्जाम्पल कहेंगे सूरदास जी का तो हमें समझ में नहीं आएगा। चलो प्रभुपाद का एग्जाम्पल कहेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि प्रेजेंट आचार्य है। तो आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने हमें इस इस्कॉन को स्थापना किया। शरीर को हिलाया, शरीर को त्रास दिया। आप सोचिए 70 इयर्स में शरीर को त्रास देना इतना सहज नहीं है। उनका शरीर कोई स्वस्थ नहीं था, थर्ड अटैक भी आ गया था। शरीर को तकलीफ देते देते उन्होंने क्या किया? हमें इस इतना सुंदर एक घर को स्थापना की। तो हमारा भी फर्ज क्या बनता है? भगवान का अच्छा सेवा करें। भगवान को सेवा कैसे करेंगे? भक्तों का सेवा करेंगे तब तो भगवान का सेवा होगा। भक्तों का सेवा करते करते भगवान को पहुंच जाता है। इसीलिए यहाँ 4 कुमारों ने भगवान का दर्शन लिया। क्यों? शुद्ध भक्ति में चल रहे हैं, इसीलिए। इसलिए भगवान को देखने के लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, विशेष रूपेण लोचन की आवश्यकता है। और ये विशेष रूपेण लोचन कैसे हमें मिल जाता है? अंजन प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। You know this verse? Chant. मेरी छुरित भक्ति विलोचनेन संतश्रदैव निजये शुरूपयन्ति यं श्याम सुन्दरं चिन्तगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मेरी पोती है, she is 6 years old, तो उसे भी बहुत इच्छा होता है मुझे भी क्लास देना, तो मैंने तो श्लोक बोले। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। जो प्रेम का अंजन लगाने वाला भी कौन है? फिर वही शुद्ध भक्ति लगाएगा। सेवा करेंगे तब शुद्ध भक्त लगाएगा। तो वो लगने के लिए, वो अंजन लगने के लिए हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज होना चाहिए। ऐसे अंजन लगा देंगे क्या? दीक्षा लेने से अंजन लगना आवश्यक नहीं। दीक्षा लेने से दीक्षा की महत्वता समझना है। दिव्य ज्ञान इक्षति दीक्षा। वो दिव्य ज्ञान को, दिव्य चक्षु को खोलने के लिए दिव्य दीक्षा होता है।
ये नहीं कि हमने बस दीक्षा ले लिया। दीक्षा ले लिया तो मेहनत भी करना होगा, मेहनत करने से दीक्षा मिलती है। तो दीक्षा दिव्य ज्ञान इक्षति, यानी ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य चक्षु को खोलने के लिए गुरु आचार्य बैठे। तो वो गुरु आचार्य कैसे हैं? शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु क्या देखते हैं? हमारे अंदर की तीव्र इच्छा। इस तीव्र इच्छा से हमारे हर अंग खुल जाते हैं। भगवान को सेवा करने के लिए भी, अब बोलेंगे अभी भी तो सेवा कर रहे हैं, दिव्य दीक्षा के बाद कौन सा सेवा है? दीक्षा के बाद जो सेवा होता है उसे समझना भी है। दीक्षा के पहले भी, दीक्षा के बाद भी जो सेवा होता है वो समझना है कि भगवान व्यक्ति हैं, भगवान खाते हैं, भगवान को भूख लगता है। जब भगवान खा लेते हैं, जिसके भाग्य में है उसे मिल जाता है। भगवान व्यक्ति हैं, हमारा और भगवान के साथ व्यक्तित्व संबंध है। ये जब हम समझते हैं, अच्छी तरह से सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर वो योग्यता प्रदान होता है, तो हम दीक्षा लेने के लिए योग्य होते हैं। जब दीक्षा मिल जाता है तो हमें और सेवा करना है। हम साधन, हमारा साधन क्या है? चैंटिंग। चैंटिंग का साध्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर क्या करेंगे? और भगवान का गुणगान करेंगे। तो यही गुणगान कर रहे हैं कुमार, कि आप ये 4 कुमार क्या बोल रहे हैं? भगवान को प्राप्त करने के बाद भगवान का और गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप एकदम दुर्लभ, आपको देखना भी दुर्लभ, लेकिन आप इन माया में जो फंसे हुए हैं उन लोगों को कभी आप मिलते नहीं हो। आज हमारा भाग्य है कि नयन मूलम, हम आपको सामने सामने देख रहे हैं। तो 9 स्तर जो है भक्ति में, जिसमें भाव और प्रेम लास्ट में जो आता है, अभी तो हम वो समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि निष्ठा के स्तर तक भी पहुंच गए तो बड़ी बात है। फिर निष्ठा के स्तर तक ही एक साधक प्रयास कर सकता है। भाव और प्रेम जो है ये सिर्फ भगवान का अनुग्रह है। निष्ठा के बाद जो रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम भगवान का अनुग्रह है। ये हम नहीं कर सकते, हम प्रयास नहीं कर सकते वहां तक। हम कहां तक प्रयास कर सकते? निष्ठा तक प्रयास कर सकते हैं, अच्छी तरह से दृढ़ निष्ठा तक। निष्ठा में बहुत तकलीफ आएंगे। निष्ठा वो स्तर होता है जहां भगवान टेस्ट करते हैं। इट इज अ टेस्टिंग पीरियड। पीछे से मैंने मेरे शिक्षा गुरु से सुना है, तो पीछे से जैसे बुक्का मारते ना, बुक्का मारेंगे पीछे से, मार मार के जैसे सोने को चमकाते हैं, उसी प्रकार से पीछे से बुक्का मारा जाता है। क्या ये भक्ति में टिकता है कि नहीं? देखिए, आदौ श्रद्धा, ये श्रद्धा तो कोमल श्रद्धा है, तभी आपको बहुत अवगत होगा। आइए आइए, आपका मान सम्मान बहुत होगा, सब लोग आपको प्रशंसा करेंगे। ये तो आदौ श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है, इसलिए ज्यादा प्रशंसा किया जाता है। समझ लीजिए, कोई ज्यादा प्रशंसा करता है, बार बार आपको बुलाता है, तो वहां क्या है? कोमल श्रद्धा है। तो मुझे भी बार बार फोन आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बिना शायद कुछ सेंटर चलता नहीं है। आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन। 1 साल के बाद मैंने सुना कि जो सबसे अयोग्य रास्कल होता है ना, उसे बार बार बुलाया जाता है। अरे बाप! उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कुछ कॉल्स को। मैं जाती थी, सत्संग सुनती थी, और उसके बाद ऐसे हुआ कि भगवान की कृपा से मुझे सत्संग करने के लिए कह दिया। तो ये भी हमारे गुरु आचार्य की कृपा हुई। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, साधु का संग होता है, भक्तों का संग होता है, भजन क्रिया प्रारंभ होता है, अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अंदर जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति से। वो क्या एक दिन में थोड़ी निकलता है? बहुनाम जन्मनाम अंते, मालूम नहीं कि यही जन्म में निकले या कितने जन्म लगेंगे वो अनर्थों को निकलने के लिए। प्रयास तो चल रहा है। हरिनाम जो है चेतो दर्पणम, प्रारंभ तो हो गया है। चेतो दर्पणम प्रारंभ हुआ। हम ये गारंटी नहीं कह सकते हैं कि आज का आज या अभी का भी, या ये जन्म के बाद, ये जन्म में ही, ये जन्म के बाद अगले जन्म में, हम कुछ बोल नहीं सकते कब भगवान का अनुग्रह होगा। ये आवश्यक नहीं कि जी दीक्षा ले लिया तो चलो अभी हमारे अनर्थों का साफ हो गया, एकदम हम साफ हो गए। नहीं, हमारा प्रयास प्रारंभ है, और हमारे प्रयास को और भी हमारे गुरु उसे सुलभ कर देते। इसीलिए दीक्षा लिया जाता है। हमारे दिव्य ज्ञान को खोलने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे अनर्थों को निकालने के लिए हमारा प्रयास चलता है।
जब हमारा प्रयास चलता है तो निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं, जहाँ 2-3 थप्पड़ खाने के बाद, 2-3 थप्पड़ के हजारों लात खाने के बाद भी वही टिके हैं। बहुत लोग कहते हैं कि बस इस्कॉन छोड़ के चल जाना है। इस्कॉन छोड़ के थोड़ी जाना है। हमारे श्रील प्रभुपाद के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। भले ही बहुत कुछ तकलीफ होता होगा प्रीचिंग टास्क में, जहाँ मनुष्य है तो वहां द्वंद्व तो होगा। ये नहीं समझना कि मंदिर में घुस गए तो द्वंद्व निकल गए हैं। कोई आपको मान देगा, कोई अपमान करेगा, लेकिन हमें जो कार्य दिया है हमारे आचार्यों ने वो करते रहना है। तब तो द्वंद्व से हम मुक्त होकर भगवान की सेवा में लग के, कोई पूछेगा अरे आपको इसमें से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो भी हो बस द्वंद्व से मुक्त होना है, निष्ठा के स्तर पर रहना। बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, आते रहेंगे, हमें बस जो हमारे दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु ने कह दिया बस वो हमें सेवा करना है। तब जाकर नयन मूलम, भगवान का दृश्य, भगवान दर्शन देते हैं। वो भी ऐसे सहज नहीं, आसक्ति रुचि वो भी चेक करते हैं, तुम्हारी रुचि कितनी है, क्या तुम्हें, ये सब भगवान का अनुग्रह है। रुचि, भौतिक जगत में तुम्हारी रुचि है तो वहां क्रॉस ठीक है। पर ईशानुभाव, विरक्ति अन्यत्र अन्य चीजों में विरक्ति, तो वहां टिक मार्क होता है। भगवान देखते हैं अच्छा इतना निष्ठा है, चलो देखता हूँ, रुचि भी इतना है क्या, तो रुचि भी दे देते, आसक्ति भी दे देते। तब भाव, ये जो भाव जो है, ये स्तर जो है, इसे रे ऑफ सन कहते हैं, द फर्स्ट रे ऑफ सन। जब सूर्य का उदय होता है तब सूर्य उदय होने वाला है, इसका प्रतीक क्या है, उजाला हो जाता है, वो उजाला भाव है। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अब तो हम ले रहे हैं नाम, मैकेनिकल नाम चल रहा है, लेकिन उस समय का जो नाम है वो कैसा है, कब होगा। यहाँ कौन कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए शिक्षाष्टकम में कहते हैं, ऐसा कब दिन आएगा जब नयनम गलदश्रुधारया, कि जब नाम ग्रहण करते, नाम स्मरण करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, नयनों से कब अश्रु निकलेगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, जो वदन है, जो शरीर है, कब गदगद हो जाएंगे, कब पुलकैर्निचितं वपु कदा, तब कब शरीर से रोम रोम निकलेंगे। तो ये लक्षण कब हमारे अंदर आएंगे, तो ये इसे भगवान का अनुग्रह ही, भगवान के अनुग्रह के लिए हमें प्रतीक्षा करना है। ये लक्षण भी भगवान का अनुग्रह है, लेकिन भगवान भी किसको देते हैं, उसे उन्हीं को देते हैं जो तेषाम सतत युक्तान, जो हमेशा भगवान का स्मरण करता है, भगवान के प्रति उसका रुचि है, भगवान के प्रति उसकी आसक्ति है, भगवत सेवा करने के लिए, भगवान की भक्तों की सेवा करने के लिए जब उसकी रुचि तीव्र होती है, तब जाकर भगवान उसे इस भाव के स्तर तक पहुंचाते हैं। और फिर ये जो प्रेम का स्तर है उसे भी प्राप्त करना है, तो हर क्षण युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। गोविंद के विरह में हर एक क्षण एक युग के समान है। अब तो हम थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, हम अब एक साधक हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के कारण हम चल पड़े, लेकिन कितने जन्म लग जाएंगे हम नहीं बोल सकते। क्या मालूम इसी जन्म में वो शुद्ध भक्ति भी प्राप्त हो सकती है, या अगले जन्म, या उसके अगले जन्म, लेकिन प्रयास हमें करना है। तो सरल मार्ग क्या है, साधु संग। साधु संग का सिर्फ ये अर्थ नहीं कि सिर्फ हमें जो बस साधु का संग मिल गया उनको सेवा नहीं करना। साधु की सेवा, साधु का संग यानी साधु की सेवा। भजन क्रिया का अर्थ क्या है, सिर्फ हरिनाम करते बैठे, कीर्तन किया आ गए। भजन क्रिया का अर्थ है सेवा। भज यानी सेवा, भजन क्रिया। कभी कभी हम सोचते हैं सिर्फ मंदिर जाएंगे, कीर्तन सुनेंगे, आ जाएंगे, बस हमारा भी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा और निष्ठा के स्तर पे हम तो आ ही गए हैं। कितना भी मंदिर में कोई भी बड़बड़ करता है तो भी हम मंदिर में बैठे हैं। इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है।
कि जो भजन क्रिया में जितना हम सेवा करेंगे तब जाकर हम समझ सकते हैं कि निष्ठा क्या है। और भजन क्रिया में हाथ पांव हिलाना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। ये नहीं समझे कि हमें सब फैसिलिटीज मिलना चाहिए। हम जैसे ही मंदिर जाएंगे तो मंदिर में प्रसाद रेडी होना चाहिए, प्रसाद में थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कमी हो गई तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, ये क्या है, तुम लोगों को बांटने को आता नहीं है। आप सोचिए, अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम तो हर संडे मंदिर जाते हैं, हर संडे वहां हम थोड़ा सा सब्जी कटिंग करते हैं, लेकिन क्या हमारा अधिकार नहीं है कि वहां का प्रसाद मिलना चाहिए? तो क्या इसे निष्ठा का स्तर बोलेंगे? तो इतना सरल भी नहीं है, ये निष्ठा स्तर भी इतना सरल नहीं। ठीक है, बड़बड़ करते हुए भी फिर भी घर में जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, वो एक अच्छा क्वालिटी है, बड़बड़ करते हुए। लेकिन आगे पहुंचना है तो हमें ये भी निकालना है अंदर से। निष्ठा के स्तर पे भी पहुंचना है तो ये भी अंदर निकलना है कि मंदिर में बड़बड़ बहुत होते हैं, आपस में लड़ाई होती है, आपस में झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ा क्रोध आता है, थोड़ा सा ईर्ष्या होती है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा। प्रभुपाद कहते हैं एवरीथिंग इज हाईएस्ट इन इस्कॉन होगा नहीं, वहां से भी आगे बढ़ना है, उस दोष से भी हमें आगे बढ़ना है। तो प्रभुपाद के दिए हुए टीचिंग्स को बस हमें वही ग्रहण करना है। प्रभुपाद को कौन सा सपोर्ट मिला, आप सोचिए, कौन सा सपोर्ट मिला, फिर भी प्रभुपाद आगे बढ़े विनम्रता से। तो यही लक्षण है। तो यहाँ कुमार कहते हैं कि यर्हि एव कर्ण विवरेण गुहाम गतो नः। कर्ण विवरेण, हमने तो आपके बारे में कानों से सुना और कानों से सुनकर हमारे बुद्धि में आपको हमने बसा लिया है। तो हम जब मंदिर जाते तो क्या सुनते, भगवान के विषय में सुनते, तो उनका चिंतन करते 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 उन्हें बसा लेना चाहिए अपने मन में। तो यहाँ हमने हमारे पिताजी से सुना, तो हम भी तो ब्रह्मा जी से ही सुन रहे हैं ना। कैसे सुन रहे हैं? गुरु शिष्य परंपरा द्वारा सुन रहे हैं। तो यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का बहुत उल्लेख भी किया है और उसका महात्म्य भी कहा। हम अकेले में जाकर कभी भी भक्ति नहीं कर सकते। संप्रदाय जो है इन चारों से ही बना हुआ है। ब्रह्मा जी, श्री यानी लक्ष्मी जी, कुमार। ब्रह्मा जी ने कुमारों को सिखाया, कुमारों ने फिर आगे बढ़ा दिया संप्रदाय कुमारों से, और फिर शिव जी से। मंदिर से संप्रदाय नहीं बनता है, बल्कि मंदिर संप्रदाय से चलता है। आजकल वृंदावन में बहुत बड़ा फैशन हो गया है, मंदिर के मठाधिपति अलग से संप्रदाय प्रारंभ करते, और हमारे जो नादान भक्त जो हैं वो सोचते हैं कि चलो वहां जाएंगे, वहां बड़े बड़े महाराज हैं। मठाधिपतियों से संप्रदाय प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर चैतन्य महाप्रभु से आकर गौड़ी धारा प्रारंभ हुआ है। श्री वैष्णव में लक्ष्मी जी से प्रारंभ होकर नाथ मुनि से इस प्रकार से प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे ही कुमार, रुद्र, निम्बार्काचार्य हो गए हैं, वल्लभाचार्य हो गए हैं, वहां से प्रारंभ हुआ। तो हम बहुत अच्छे स्थान में हैं। इस्कॉन जो है ये हमारे लिए द सेफेस्ट प्लेस है। ठीक है, कोई कोई मंदिर में गड़बड़ होता होगा, लेकिन हम प्रभुपाद की गोदी में हैं। इस्कॉन जो है ये प्रभुपाद का लैब है। हमारे गुरु आचार्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उन्होंने विल में लिखा है कि नेवर लीव इस्कॉन। उनका विल जब पढ़ा गया उसमें लिखा है कि नेवर लीव इस्कॉन। कुछ भी हो, अगर किसी से बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो थोड़ा हट जाओ। लेकिन भक्तों के प्रति ज्यादा हम अपराध नहीं कर सकते। अगर भक्त कोई हमारे प्रति कुछ कर रहा है तो भी क्या करो, दंडवत प्रणाम करो। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो वहां से हट जाओ। पित्रानुवर्णितः, मेरे पिताजी ने वर्णन किया है, हमारे पिताजी ने आपके बारे में वर्णन किया है, कुमार कह रहे हैं। यानी वर्णन करके, कर्ण से सुनकर हम आपका एक छवि हमारे हृदय में बसा लिए थे, और आज वही छवि को हम देख रहे हैं। तो वही प्रोसेस को श्रील प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया। वही वर्णन को कर्ण से सुनकर
और सुलभ क्या कर दिया है प्रभुपाद ने, हमें डीटीज दे दिए। दीक्षा में एक पंच संस्कार में एक आता है कि हमें ताप पुंड तथा नाम मंत्र यागाश्च पंचमहा, याग देते हैं। याग यानी यू आर कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर डीटी, तो वहां भजन क्रिया यानी हमें सेवा करना है। ये दीक्षा में पंच संस्कार होता है। ताप पुंड तथा नाम मंत्र यागाश्च पंचमा, यह मंत्र देते हैं ताकि सेवा करो अच्छी तरह से। तो सेवा करने के लिए और किस प्रकार से सेवा करके हमारे अंदर और अच्छी योग्यताएं लाकर भगवान का दर्शन कैसे करें, इसके लिए एक सुलभ रास्ता देते हैं हमारे गुरु परंपरा। तो इस श्लोक में गुरु परंपरा का बहुत सुंदर उल्लेख दिया है, क्योंकि हमने सुना है, यहाँ कुमार कहते हैं कि हमने सुना है हमारे पिताजी से। जैसे आप देखेंगे रुक्मिणी माता कौन है, स्वयं लक्ष्मी है। उन्होंने भी सुना नारद जी से और छवि बना लिया भगवान का हृदय में। और इस प्रकार से जब भगवान को देखी तो एकदम भगवान को तो वर्णन करते हुए उन्होंने एक लेटर भी लिखा, भगवान को देखकर भाव विमोह हो गई। तो भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं कब, तेषां सतत युक्तानाम, हमेशा जब युक्त रहेंगे तब जगह भगवान व्यक्त होते हैं। और भक्तों को भगवान की सुंदरता में, भगवान को सुंदर सजाने में ज्यादा रुचि है। ये जो निराकार ब्रह्म तत्व में उनको कोई रुचि नहीं है। ज्ञानी योगी ये सब तपस्या बहुत करते हैं उस निराकार तत्व को समझने के लिए, ब्रह्मन तत्व को समझने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हैं, शरीर को तकलीफ देते हैं। ये ब्रह्मन तत्व का अर्थ क्या है, जीव ब्रह्मन, जड़ ब्रह्मन, पर ब्रह्मन। पर ब्रह्मन को भी समझना कि पर ब्रह्मन व्यक्ति है, उनका और हमारा व्यक्तित्व संबंध है। नहीं, जब तक एक भक्त का संपर्क नहीं आएगा तब तक हम भगवान व्यक्ति हैं, हमारा भगवान के साथ व्यक्तित्व संबंध है, ये नहीं समझ सकते। इसलिए 9वें अध्याय को भगवद गीता में राज विद्या राजगुह्य योग कहा है। भगवान खाते हैं, यद करोषि यदश्नासि जुहोषि ददासि, यद भगवान कहते हैं जो भी करते हो जो भी खाते हो मुझे दो। एक व्यक्ति ही ये मांग सकता है, निराकार तत्व इसे मांग नहीं सकता। मांग भी किससे रहे, मांग भी हर जीवात्मा से बोल रहे, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अब देखिए इस वर्ष में आप सबको कनेक्ट कर सकते हैं कि भगवान व्यक्ति हैं और भगवान ने कहा है कि हर एक जीवात्मा मेरा अंश है। तो इस प्रकार से हर जीवात्मा का भगवान के साथ व्यक्तित्व संबंध है। इस व्यक्तित्व संबंध को जागृत करने के लिए श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय, तब जाकर शुद्ध चित्त, जितना हम श्रवण करेंगे तब जाकर भजन करेंगे। भजन का अर्थ सिर्फ कीर्तन गाते बैठना नहीं है, हाथ पांव हिलाकर सेवा करना है। और सबसे बड़ा सेवा क्या है, भगवान को भोजन खिलाना सबसे बड़ा सेवा है। चैतन्य लीला में आप क्या देखेंगे, भजन देखते हैं। कैसे भजन, कीर्तन भजन या फिर प्रसाद भजन, अच्छा भोग बनाकर चैतन्य महाप्रभु को खिलाना, चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट को सब भक्त ग्रहण करना। तो यही तो आनंद है। किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा आपकी सोसाइटी में क्या करते हैं, तो कहा कि फीस्टिंग एंड डांसिंग, फीस्टिंग, कीर्तन एंड डांसिंग, फीस्टिंग चैंटिंग डांसिंग, ऐसा कहा, फीस्टिंग चैंटिंग डांसिंग। और कुछ काम नहीं है क्या, बोले आप भी आ जाओ ज्वाइन कर। अब इतना कुछ काम करते हो किसके लिए करते हो, और टेंशन लेने के लिए करते हो। हमारा तो सिंपल फिलॉसफी है, फीस्टिंग चैंटिंग डांसिंग, बस हमारा वही फिलॉसफी है। सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे, हमारा यही है, अधोक्षजे का सेवा करना, अच्छा सुंदर भगवान के लिए व्यंजन बनाना, भगवान को खिलाना। जब भगवान वो ग्रहण कर देते हैं तो उस व्यंजन में दोष को निकाल देते हैं, ये पूरा भरोसा होना चाहिए। और भगवान को व्यंजन भी क्या खिलाना चाहिए, ये नहीं कि चलो भगवान तो दोष निकाल देंगे तो हम कुछ गलत चीज को डाल दें और भगवान को खिला दें। बहुत सारे हम देखते हैं कि कभी कभी किचन में हम सस्ते चीज को लेकर आकर भगवान को बनाने का प्रयास करते हैं।
सस्ता तेल, सस्ता घी, तो भगवान तो खाएंगे ना, दोष तो निकाल देंगे ना। तो एक बार प्रभुपाद को किसी ने काला काला रोटी दिया, तो प्रभुपाद ने कहा ही इज गॉड नॉट डॉग। तो भगवान व्यक्ति हैं, तो भगवान को सुंदर सा भोजन खिलाना चाहिए, और सुंदर भोजन खिलाने के बाद भगवान का जो भोजन है जिसके भाग्य में उसको बांट देना चाहिए। अपने भाग्य में तो हमें भी लेना चाहिए, और हमारे भाग्य में नहीं है किसी और के भाग्य में तो उनको देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भगवान का भोग, भगवान व्यक्ति है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का प्रसाद, भक्तों का संग, भगवत श्रवण, इस रूप में प्रस्तुत होता है। अन्न प्रसाद, ऐसा भगवान सुंदर सुंदर प्रसाद भगवान कैसे देते हैं? भक्तों के संग से देते हैं, भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा मिला यानी ये भाग्य है, एकदम भाग्य। एक गीत है, दाना मोरा नित्यानंदा। हाँ, कल हम लोग सुन रहे थे गाड़ी में, तो मैं बता रही थी कि हम लोग जब मीरा रोड जाते थे, सुबह सुबह 9 बजे निकल जाती थी मैं थाना से, और क्योंकि तभी मेरा सन IIT बॉम्बे में, IIT वाराणसी में चले गया था, तो मैं यहाँ सुबह से क्या करूं घर में बैठकर। मटर बाटा है। विंटी माता जी म्यूट करिए, प्रभु जी माता जी जोड़ दिए। तो हम लोगों का सेवा होता था, छोटा मंदिर था, झाड़ू मारते थे, तब एक गीत गाती थी, धना मोरा नित्यानंदा। तो उच्चिष्ट है उसमें एक पद, और धूली का पद है। झाड़ू मारते थे, धूली निकलता था, लगा लेते थे सर पे, शरीर में। वो दिन बहुत अच्छे थे। तभी बहुत छोटा मंदिर था, 2006 में, बहुत अच्छा लगता था। तो यही हमें करना है और कुछ नहीं। भक्तों का जितना सेवा मिल जाता है, ले बनाओ। भक्तों के लिए हाथ पांव चलाओ, जितना से वो भक्त, छोटा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सबके लिए बनाने का हाथ पांव हिला कर जितना हम सेवा कर सकते हैं सेवा करें। हमारे अंदर भगवान को योग्यता दें कि हम निष्ठा के स्तर पर पहुंचे, और फिर उतना हम प्रयास करने की हमारे अंदर शक्ति दे भगवान। और फिर जैसे 4 कुमारों को दर्शन मिला, उसी तरह से भगवान का अनुग्रह रहेगा, तो हमें रुचि आ सकती, भाव और प्रेम सकता है। लेकिन इतना तो गारंटी है कि मिलना है। वो कौन से जन्म में मिलेगा वी डोंट नो, लेकिन मिलेगा। क्यों? हमने प्रभुपाद कहते मेरी धोती को पकड़ लो, प्रभुपाद के धोती को पकड़ लिया है। जो प्रभुपाद के धोती को पकड़ लेता है, प्रभुपाद के दिए हुए मार्गदर्शन में चल रहा है, बस हमें कहीं छोड़कर कहीं नहीं जाना है। सब आचार्य अपने अपने स्तर पर ठीक है, हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी है, लेकिन उसी समय में हमें सतर्क रहना है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है, हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए।